Okay, well, so today we will start the diffraction due to double slit. Actually, we have already seen how the diffraction pattern is observed by using a single slit, but in this topic, we will see how the diffraction pattern is formed on the screen by if we are using the two slits. तो सिंपल आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें मैंने दो स्लिट S1 और S2 दो स्लिट ली हैं, जिसमें मैंने क्या है कि जो लाइट दो लेंस यूज किए हैं, जैसे वहाँ यूज हो रहे थे, वहाँ एक सिंगल स्लिट मैंने काफी बड़ी स्लिट ली थी क्योंकि मुझे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकालना था. सेम थिंग विल बी हियर, बट आई एम यूजिंग द टू स्लिट्स एंड दिस स्लिट विल बी treated as the coherent sources. तो मैंने जो लाइट है जो बिल्कुल इस सोर्स से आ रही है, और ये जो आपका लेंस है, दिस लाइट used to make this light parallel to these two slits. When the light is the slits name is A, B and C, D, and I am considering here the light is just passes between just mid of this slit. So this slit having the width E, each of the slit having the width E, and the spacing between these two slits is D. So this is at E by 2 and this is also at E by 2. So this becomes E by 2 plus E by 2 E, and B C कितना है, D है. So total this distance between two slits, spacing between two slits is E plus D. And now the light is diffracted from this edge, so it makes an angle theta, and it also makes an angle theta. So this angle will also be theta. So we will calculate this part difference as to K when we are using the two slits. So now I am just moving to the derivation. ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिंगल स्लिट मोस्टली आपका देखा गया है कि काफी टाइम्स आपके एग्जाम में आया है. तो अब आप देखेंगे सेंट्रल मैक्सिमा अगर विदाउट डिविएशन P पर है, अगर डिविएशन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, तो P1 पर बनता है. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू द डेरिवेशन. नाउ द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म्ड होते हैं. नाउ आप जानते हैं कि पहली जो स्लिट है, एक अगर आप इफ यू आर यूजिंग अ सिंगल स्लिट, तो उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. सो आई एम जस्ट सेइंग R1 because the resultant amplitude due to single slit, A sin alpha over alpha, where alpha is pi E sin theta over lambda and A was a constant amplitude था, जिसको हमने n small a लिखा था. Now अब ये दोनों स्लिट क्या है, एज आई टोल्ड यू कि दोनों स्लिट क्या है, सोर्स कोहेरेंट सोर्स की तरह ट्रीट होंगी क्योंकि इनसे सेम विड्थ की है, लाइट पास हो रही है. तो इनका जो इनसे एम्पलीट्यूड जो पास होके आएगा, दिस एम्पलीट्यूड विल बी A sin अल्फा ओवर अल्फा. दोनों जो स्लिट्स हैं उनसे जो लाइट पास होके आएगी, इट हैविंग द एम्पलीट्यूड A sin अल्फा ओवर अल्फा. अब हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो पार्ट डिफरेंस यू नो अबाउट इट. Part difference क्या है, you have already seen these things. Part difference is this S2K. So you can apply sin alpha, so sorry sin theta. So by using the sin theta in this triangle, sin theta की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे. So the sin theta becomes S2K upon S1 S2. You know the value of S1 S2 is E plus D, and you are going to calculate S2K, that is the part difference between the resultant wavelets which is coming out from slit 1 and 2 respectively. So this becomes S2K is equals to E plus D sin theta, जो कि सिंगल स्लिट के केस में E sin theta आ रहा था, रिमेंबर. नाउ अब हम वही काम करेंगे, we will calculate the phase difference. Simple phase difference will be 2 pi by delta is equals to 2 pi over lambda into path difference. So simply let's say equation number 1, so that will be the phase difference between the R1 and R2. So they basically, let's say R1 in this way and R2 in this way, these two having the phase difference is delta. Now I am calculating the resultant of these two. So you know the vector addition theorem. By applying this vector addition theorem, so you can calculate the total resultant of these two, both having the same amplitude but having the phase difference of delta. So now you can calculate it. You can put the value of this will be equals to R1 square. You have already heard about in earlier classes also कि कैसे इसका जो वो है वो हमें निकालना है. So this becomes R1 square plus R2 square. This is I am also writing R1 square because both are same. That is why I am writing R1 R1, but that will be R1 R2. That's okay. 2 R1 R2 and cos delta.
So both are same, so these two will be same, so that will be the twice, and twice sin alpha over alpha, a sin alpha over alpha into cos delta. So now you can take the common, this will be 2, and 2 plus 2, 2 will also be comes out, so this becomes a sin alpha over alpha 1 plus cos delta. Or you can use the formula of cos delta in terms of cos delta by 2, cos 2a equals to होता है 2 cos square a by 2 minus 1. So I am just in place of a here is delta, so you can write it 2 cos square delta by 2 minus 1. So this 1 and 1 will be cancelled out, so this 2 and 2 becomes 4, and this becomes cos square. Now you know the value of delta, twice pi e sin theta over twice pi e, this will be here. Just one important point is left, you can remember this point here. So this becomes e plus d, that will be, because यहाँ क्या है e नहीं है, remember this will be e plus d, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे cos square 2 pi e plus d, remember यहाँ e को e plus d लिखेंगे, बीटा में भी pi e की जगह e plus d आएगा, और बाकी के टर्म्स को आपने cos स्क्वायर बीटा मान लिया, क्योंकि इस सबको कांस्टेंट मान लिया, ये e की जगह e प्लस डी आएगा, क्योंकि आप यहाँ से e प्लस डी के टर्म्स में वैल्यू रख रहे हैं. तो दिस बिकम्स पाई e प्लस डी साइन थीटा ओवर लैम्डा. लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, एंड दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ the wavelets which is coming out from slit 1 and slit 2. अब हम बात करते हैं ये इक्वेशन 2 में जो ये फैक्टर है, यू हैव ऑलरेडी सीन दिस फैक्टर a sin अल्फा ओवर अल्फा का होल स्क्वायर. दिस इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट. आपने पिछली बार भी देखा है कि पिछले डेरिवेशन में, सिंगल स्लिट के डेरिवेशन में, कि ये किसकी वजह से आ रहा था, सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन की वजह से आ रहा था. अब जो दूसरा फैक्टर है, दिस फैक्टर इज बेसिकली cos स्क्वायर बीटा. अब आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो S1 और S2 विल बी ट्रीटेड एज दी कोहेरेंट सोर्स, तो ड्यू टू दीज कोहेरेंट सोर्स की तरह ट्रीट होंगे, तो दे विल मेक अ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑल्सो. तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा ये टर्म cos स्क्वायर बीटा. तो अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, पहले इस वाले टर्म्स के लिए कंडीशन लगाएंगे, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, फिर इस वाले टर्म के लिए कंडीशन लगाएंगे कि इन दोनों से प्रिंसिपल मैक्सिमा, मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा की क्या क्या कंडीशन निकल के आती है. वही पैटर्न फॉलो होगा, कुछ नया नहीं है. तो पहले हम ए साइन टर्म ए स्क्वायर साइन अल्फा ओवर अल्फा का होल स्क्वायर के लिए निकाले, इसके लिए कंडीशन वही रहेंगी जो सिंगल स्लिट के लिए थी, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जैसे प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए आपने अल्फा इक्वल्स टू इसमें 0 रखा था, तो थीटा हमारा 0 आया था, क्योंकि आपने कैसे निकाला था, क्योंकि पाई ई साइन थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, ये भी 0 चला जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, यानी साइन 0 थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया, जो आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा देगा. अब बात मिनिमा की करें, तो मिनिमा के लिए ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 0 होनी चाहिए, तो बट अल्फा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी 0 दिखा चुके हैं हम. तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस पाई 2 पाई, तो एम पाई हो जाए. एन इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज एन इक्वल्स टू 1 पे आपका ये प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता है, तो एम इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये मिनिमा की कंडीशन आ गई. तो मिनिमा लाइज आइदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल, दोनों साइड प्लस माइनस इसलिए यूज हो रहा है कि दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड उसका मैक्सिमा मिनिमा, वो मिनिमा दोनों साइड मिलेंगे. अब सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर लेते हैं. तो सेकेंडरी मैक्सिमा में क्या है, आपको मैं ऑलरेडी कंडीशन बता चुका था. सेकेंडरी मैक्सिमा किस पे मिल रहा था, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2. तो ये कंडीशन जो बन जाएगी अल्फा इक्वल्स टू 2n प्लस 1, जो हमने ग्राफ से निकाला था, वो कंडीशन आप डायरेक्टली यू कैन राइट इट हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन राइट डायरेक्टली. तो दिस बिकम्स अल्फा इक्वल्स टू 2n प्लस 1, क्योंकि n की जगह आप 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 रखेंगे 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ये वैल्यू आ जाएंगी. तो सिंपली कंडीशन निकल के आ जाएगी 2n. इसको प्लस माइनस भी आप कर सकते हैं, बिकॉज प्लस माइनस है, तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा टी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है, इट शुड बी लैम्डा बाई 2. ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे टर्म जो हमारा cos स्क्वायर बीटा है. cos स्क्वायर बीटा के लिए कंडीशन होना चाहिए एट n इक्वल्स टू 0 थीटा इक्वल्स टू 0 गिव्स द सेंट्रल मैक्सिमा. अब मिनिमा की क्या करना, ये कंडीशन तो आप ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है. अब हम दूसरी कंडीशन बात करेंगे, मिनिमा की कंडीशन. मिनिमा की कंडीशन क्या कहती है हमारी, देखिए
अब मिनिमा की कंडीशन यहाँ आप देख सकते हैं, मिनिमा की कंडीशन क्या कह रही है। मिनिमा की कंडीशन के लिए आप सिंपल क्या कर रहे हैं, इसमें कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0 आपने रखा, क्योंकि 0 होना चाहिए, तो कॉस बीटा 0 होगा, तो बीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2m + 1 π/2। कैसे हो गया, क्योंकि बीटा की वैल्यू अगर आप कॉस 0 कहाँ कहाँ होगा तो आप n = 1 डालेंगे, तो दिस बिकम्स 3 π/2, 5 π/2। इस तरीके की जो वैल्यूज होंगी उन पे आपका क्या है, ये बीटा की वैल्यू जो है 0 होगी। सो दिस बिकम्स, और बीटा की वैल्यू आप पीछे लिख चुके हैं जहां में वहां हम डी मिसप्लेस कर गए थे, तो e + π/λ e + d sin थीटा। सो दिस बिकम्स 2m + 1 π/2, एंड प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि दोनों साइड की बात होगी, मिनिमा दो। अब सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या है, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो इसको 1 कहाँ होगी, ±n पाई पे, तो यहाँ पे आपकी ये कंडीशन निकल आई सेकेंडरी मैक्सिमा की, e + d n ±n लैम्डा। अब आप देखिए इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इजी, सो यू कैन सी दैट इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेशन, ये आपका पूरा ग्राफ जो है ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा इस पूरे आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को, बट अगर इफ यू स्प्लिट इट देन यू विल गेट दिस ग्राफ। और साइन स्क्वायर अल्फा का आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको आप सेपरेटली इस तरीके से दिखा सकते हैं, π/2 -π/2। तो कभी कभी ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो इसका हो गया आपका सिंपल कि कैसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कोर्स में है, दैट इज द मिसिंग ऑर्डर्स, एब्सेंट स्पेक्ट्रा इन डबल स्लिट्स। कभी कभी एग्जाम में आपकी इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, सिंपल डेफिनेशन के व्हाट इज द मिसिंग ऑर्डर। तो मिसिंग ऑर्डर क्या है, ये सिंगल स्लिट में क्यों नहीं मिलते, क्योंकि सिंगल स्लिट में सिर्फ आपको एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है जिसमें आपके ऑर्डर्स कोई मिसिंग नहीं होते। बट इन केस ऑफ डबल स्लिट और इन केस ऑफ इफ यू गो फॉर द ग्रेटिंग, the some maximas are missing और some spectra is missing। क्यों मिसिंग होते हैं, क्योंकि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको सिंगल स्लिट की वजह से मिलता है और एक आपको डबल स्लिट की वजह से एक आपको इंटरफेरेंस पैटर्न भी मिलता है। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न के जो मिनिमा है वो क्या करते हैं, वो ओवरलैप कर जाते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न के मैक्सिमा से, तो उन मैक्सिमास को क्या है स्पेक्ट्रम से गायब कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मिसिंग ऑर्डर्स या एब्सेंट स्पेक्ट्रा। तो इनकी डेफिनेशन भी आप यहां से लिख सकते हैं कि आर दोज द मिसिंग ऑर्डर आर दोज मिसिंग पैटर्न इन द मिसिंग ऑर्डर्स इट अकर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आप जानते हैं कि अब यहां से थोड़ा इनके लिए कंडीशन निकालेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर कब कब मिसिंग होंगे। तो आपने कंडीशन ऑफ मैक्सिमा ड्यू टू डबल स्लिट के लिए आप निकाल चुके हैं, e + d sin थीटा = ±n। अब सिंगल स्लिट के लिए क्या कंडीशन थी, क्योंकि इसमें सिंगल स्लिट भी इन्वॉल्व है, मिनिमा की m ± m लैम्डा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगा दो तो e + d/e = n/m, क्योंकि इसमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है और एक आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है, तो उन दोनों पैटर्न का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। तो अब अगर आप यहां से वैल्यू निकालें, अगर मैं कंसीडर करूं e और d बराबर है, स्पेसिंग और विड्थ स्लिट की बराबर है, तो n = 2m। अब यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। n क्या है, अब n अगर m आप 1 रखेंगे तो n की वैल्यू 2 4 6, यानी ये मिनिमा अगर ये मिनिमा 1 2 3 लाई करेंगे किस पे, 2 4 6, यानी 2 4 6 एंड सो ऑन इंटरफेरेंस मैक्सिमा विल बी मिसिंग। ये मैक्सिमा इंटरफेरेंस पैटर्न जो आपको मिलेगा वहां पे उस पैटर्न में ये मिसिंग होंगे, क्योंकि ये किससे ओवरलैप्ड होंगे, सिंगल स्लिट के मिनिमा से। अब सेम इसका में आप कंडीशन लगा दें, अगर डी को स्पेसिंग को मैं ट्वाइस ऑफ विड्थ कर दूं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, n = 3m। अब यहाँ n की वैल्यू m की वैल्यू आपने क्या ली 1 2 3, तो ये आपके 3 6 9, यानी थर्ड 6 और 9th जो इंटरफेरेंस का मैक्सिमा होगा वो मिसिंग होगा, वो किससे ओवरलैप हो जाएगा 1 2 3 डिफ्रैक्शन पैटर्न के मिनिमा से। अब ऐसे ही थ्राइस करके आप निकाल सकते हैं। अब मिनिमा